So, hello everyone. I am back with another test and discussion session for the MSc Entrance Exam under planmsc. I am Priyanka Randhir, the Mastermind Faculty and Senior Content Strategist in nursingngextlive. So, आज भी हम जैसे पहले questions किए थे, आज हम 40-41 questions discuss करने वाले हैं. And please, I request कि आप participate कीजिए. एंड जितने भी बच्चे ज्वाइन करें वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें सो दैट वी कैन हैव अ गुड डिस्कशन. ठीक है, टेस्ट एंड डिस्कशन नाम है. सो डिस्कशन के साथ करेंगे, आपको भी याद रहेगा और मुझे आपको याद कराना आसान हो जाएगा. राइट. सो यस, आई थिंक अभी कुछ बच्चों ने ज्वाइन अभी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन. So, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, kindly comment that you are there so that we can start the class. I think I'll wait 1 to 2 minutes more so that more and more students can join. So, in planmsc, we have a 30 days schedule in which we are doing the revision classes, right? So, ये revision classes जिन्होंने पहले कहीं नहीं की है, they can now join us. और बाकी आपको कंटेंट जो है वो प्लान एमएससी में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा. वी आर हियर जस्ट टू रिवाइज. ठीक है. सो यस, who all are here? Let me check. I'm unable to see that. Okay. So just 1 or 2 minutes more and I'll start the session. Okay, and Green is here. Hi, Green. So you have RAK exam on Sunday. Okay. I think if you are attending these sessions also, they are going to be really beneficial. And our previous year papers पे ध्यान दीजिए, and definitely you are going to do well. Hi Ankit, hi Sabika, hi Archana. Good to see the same students back. Okay, so let's start the session. Okay, so first question for today, I have mixed all the subject questions ताकि आपकी हर तरह से रिवीजन हो सके. And mostly वो वाले मैंने questions डाले हैं जो बच्चों को थोड़ा confuse करते हैं. ठीक है, so चलिए start करते हैं with our first question. Do participate so that we can have a healthy, good session, right? Okay. So, let me start the test and discussion session. और अगर question जो है आप read नहीं कर पाएंगे because of my image, do let me know. मैं थोड़ा सा इसको adjust करूँगी, right? Yes, very good evening, Saini, Pratibha, Nargis, very nice. New students are also here. Okay, the first question for today is, a field trip can be made different from usual picnic by. So just write your answers in the comment section. कैसे आप एक फील्ड ट्रिप को डिफरेंट बना सकते हो एक यूजुअल पिकनिक से, राइट? आप पिकनिक पे जाते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जाते हैं, बट एक फील्ड ट्रिप जो है हम नर्सिंग एजुकेशन में पढ़ते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग, राइट? सो हाउ वी डिफरेंशिएट फील्ड ट्रिप फ्रॉम यूजुअल पिकनिक? Yes, who is going to give the answer? Saini has given the answer. She was the first one to answer. Very good. Yes, correct. So the correct answer is defining the educational objectives. Defining the educational objectives. See, if you don't have any objective, you are just going for fun, then it is a usual picnic. लेकिन अगर आप ये सोच के चाहते हो कि हमने लेट्स सपोज कोई साइंस सिटी है, कोई म्यूजियम है, वहां पे हमने विजिट करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमने ये सीख कर आना, राइट? देन द थिंग्स आर डिफरेंट. तब हम उसे फील्ड ट्रिप कहते हैं, राइट? आप सभी गए होंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी के अंडर होता है, राइट? ओके, वेरी गुड.
Moving on to our next question, which is, which method is the placement of a series of variables in ascending and descending order? In ascending and descending order. So tell me. It is ranking. Yes, very good. The answer is ranking. Now, I have given you the answer. Now, tell me why rating and Q sort are incorrect. Why rating and Q sort are incorrect. हम क्यों कह रहे हैं कि ranking is the correct answer. Why we are saying that ranking is the correct answer. बताओ जल्दी से. Comments में लिखिए. Yes, ranking is the correct answer. बहुत बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है. But why we are saying that ranking is the correct answer? Why not others? Why not rating? Why not Q sort? Anyone who is going to answer? Okay, चलिए मैं ही बता देती हूँ. Because question में आप पढ़िए, it's written ascending and descending order. What it is written? It is written ascending order और descending. ठीक है? Increasing trend में या decreasing trend में. So rank में ही आप ऐसे कर सकते हो. या तो आप 1 to 10 रैंक बता दो सबसे अच्छा कौन सा है, फिर उसके बाद एंड या आप बैक रैंकिंग भी कर सकते हो 10, 9, 8, राइट. सो सिर्फ रैंकिंग है जिसमें आप असेंडिंग भी जा सकते हो एंड आप डिसेंडिंग भी जा सकते हो, राइट. रेटिंग मीन जैसे आपने बीच में बोलना है कि ओके 5 स्टार, आई एम गिविंग 5 स्टार टू सर्टेन पर्सन, राइट. आपने 5 स्टार दे दिए, 4 स्टार दे दिए, उसमें आप बैक एंड फ्रो नहीं कर सकते, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं कर सकते. एंड व्हाट इज क्यू सॉर्ट? क्यू सॉर्ट एक होता है जैसे कि आप क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स सपोज यू गो इन अ कैफे, ठीक है, वहां पे आपने कॉफी पी एंड बाद में वो आपके पास एक क्यू सॉर्ट क्वेश्चन लेके आते हैं. उसमें क्या है, एक स्केल बना है, राइट. और उस स्केल में क्या बना होता है, उस स्केल में होता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. सॉरी नॉट असेंडिंग डिसेंडिंग, स्ट्रांगली एग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री. बीच में होता है न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री, राइट. सो ये होता है. तो इसीलिए सिर्फ एक रैंकिंग है जिसमें वी हैव असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. गॉट इट? किसी को कोई डाउट है व्हाट इज क्यू सॉर्ट एंड एवरीथिंग? किसी को भी डाउट है देन लेट मी नो. व्हाट इज क्यू सॉर्ट, व्हाट इज रैंकिंग? मैंने उसका डिफरेंस आपको बता दिया है क्यू सॉर्ट एंड रैंकिंग का, right? Okay, so just a second, I think my writing pad is not working. Let me check it first. Yes, so Q sort और उसमें ascending and descending नहीं होता है, right? Okay, yeah, now it will work. So Q sort में मैंने क्या बताया है, एक में होगा strongly, you agree to something, okay, then there will be a neutral response that you don't know, and then you strongly disagree. Extreme cases होंगे, right? Okay, moving forward. Okay, moving to our next question, that is bleeding from the posterior gastric ulcer arises. Posterior gastric ulcers हुए हैं means stomach के posterior part में, ठीक है, जो पीछे का पार्ट है वहां पे अल्सर्स हैं. तो कौन सी जो वेसल है that is responsible for bleeding, कौन सी वेसल इन्वॉल्व है? सो जल्दी से अपने कमेंट पे आंसर्स दीजिए. Which artery is involved, which vessel is involved? जी बताइए, which vessel is involved? I hope my screen is visible. M Green का सबसे पहले आया है आंसर. She says it's C. Spandita says it's D. Okay, most of you are saying C, but the correct answer is B.
Very good. Who has answered? I think Ambika, who was one? Anandita, I think. Yeah. So जिसने भी B कहा है, excellent answer. Why? Now let me tell you why. जो पीछे का पोस्टीरियर पार्ट होता है स्टमक का, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक एरिया को जो सप्लाई करती है, दैट इज स्प्लेनिक आर्टरी. सो इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा गया था कि आर्टरी कौन सी है जो सप्लाई करती है ब्लड टू द स्टमक, अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग करती है. नाउ if I talk about the inferior pancreato-duodenal artery, so inferior है तो ये inferior पार्ट को करती है, right? ये तो आप ऐसे ही रूल आउट कर सकते हो. फाइन. देन अगर हम बात करें, इंफीरियर मैंने आपको बता दिया है, स्प्लीनिक आर्टरी पोस्टीरियर को करती है. लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है ग्रेटर कर्वेचर को. ठीक है, बोथ ऑफ देम. ग्रेटर कर्वेचर एक पार्ट होता है ना, ग्रेटर कर्वेचर, बाहर वाला जो कर्वेचर, बड़ा वाला जो कर्वेचर होता है ना, दैट इज ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक. जो बड़ा वाला है उनको करती है लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड बिकॉज दिस इज अ रिवीजन क्लास, सो मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ कि आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊं. एवरीथिंग इज गिवन इन योर प्लान एमएससी ऑन दैट, राइट? ओके. द नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग इंट्रावीनस कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा जरूर है बट बहुत सिंपल आंसर है इसका. सो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग एज अ नर्स आप दे रहे हो, कौन सी चीज के लिए यू नीड टू गिव एन इमीडिएट एक्शन. अगर पेशेंट कहता है कि मेरे स्टोमेटाइटिस लीजन है, ठीक है, माउथ में, सिवियर नॉजिया एंड वॉमिटिंग है, पेन है एट द साइट ऑफ इंफ्यूजन जहां कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग जा रहा है, या रैश है ऑन द पेशेंट्स एक्सट्रीमिटीज. सो व्हाट डू यू थिंक? लेट्स सपोज आपने नहीं पढ़ा है, कभी नहीं भी पढ़ा होगा ये टॉपिक, बट अगर कीमोथेरेपी जा रही है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है? Yes, so keep writing your answers. Excellent. Everybody has given correct answer. Very good. It's none other than option C. Why? See, chemotherapeutic drugs जो हैं वो बहुत irritant होते हैं. So because they are irritant, तो हो सकता है कि जिस साइट पे हमने उसे infuse हम कर रहे हैं, दे रहे हैं वेन के थ्रू, वहां पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाए, इनफिल्ट्रेशन हो जाए. ठीक है, सो वो उस वजह से, क्योंकि ये इरिटेंट है, हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर पेन, कोई कहता है कि साइट ऑफ इंफ्यूजन पे पेन है, उसी टाइम स्टॉप करके हम इंफ्यूजन को चेंज करें. राइट? ओके. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर कि अगर एग्जाम में भी आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक आए नहीं है, इन केस अगर आते हैं या ऐसे इमीडिएट एक्शन वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कुछ नुकसान हो रहा है पेशेंट को किसी चीज से, लेट्स सपोज कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग से हो रहा है, तो आपका सबसे पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए टू स्टॉप इट. सबसे पहले बंद करना है, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन हो, किसी चीज का हो, सबसे पहले द नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू स्टॉप द इंफ्यूजन. रीजन भी क्यों हमें स्टॉप करना है? ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो. अब यहाँ पे अगर आप बाकी चीजें देखते रहोगे तो और ज्यादा कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग जाता रहेगा, जो वेन हम बचा सकते थे वो इस कंडीशन में पहुंच जाएगी कि हम उसे बचा भी नहीं पा रहे. Right? So always the priority is to stop. Okay. Next one. Now this is from sociology. अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हो sociology, तो कुछ questions मैंने यहाँ ऐड किए हैं कि आपको बेसिक आइडिया हो जाए. So ये कार्ल मार्क्स ने इनमें से कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी? ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है, एज सच थ्योरी का नाम नहीं लिखा है बट उसका कॉन्सेप्ट लिखा है. ठीक है, सो कार्ल मार्क्स ने कौन सी थ्योरी दी थी? एनी आइडिया? कोई है जो सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं? आनंदिता, यू आर सेइंग बी. ओके. Sayani, good. B. Yes, very good. It is nothing but B.
नाउ व्हाट इज कम्युनिज्म? क्यों कम्युनिज्म को कार्ल मार्क्स से जोड़ा जाता है? बिकॉज कार्ल मार्क्स ऑलवेज बिलीव्ड इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट। कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी कि देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन क्लासेस, जैसे लोअर क्लास है, अपर क्लास है, उनमें हमेशा एक स्ट्रगल बनी रहेगी, राइट? और कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ही के पावर जो है एक ही के हाथ में रहेगी, राइट? सो ये कुछ टर्म्स हैं जो स्पेसिफिकली किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, using IMNC guidelines, what is the best management for severe pneumonia? So एक तो आपने IMNC guidelines का ध्यान रखना है, उस हिसाब से बताना है, एंड सेकेंडली severe pneumonia है, तो इस केस में आप क्या करोगे? जल्दी से बताओ क्या करोगे? ओके, राइट, नाइस, ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी। सभी ने डी लिखा है, वेरी गुड। That means you are learning, आप पढ़ चुके हो पहले, and this is literally a revision class, so that's very good. I'm so happy कि आपको सभी questions के आंसर आते हैं। जिनको नहीं भी आते, it's okay, अब आ जाएंगे, आज के बाद से आपको वो पता है, right? Okay, now मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। IMNC की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस। इन्होंने एक पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जिन्होंने डिटेल में पढ़ना है या जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है, they can refer their standardized book, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। सो IMNC वालों ने कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि किस लेवल पे घर पे मैनेज हो सकता है, किस लेवल पे रेफर करने की जरूरत पड़ेगी, राइट? सो उन्होंने सिवियरिटी के अकॉर्डिंग दिए हैं। नाउ बिकॉज इट इज सिवियर निमोनिया, नाम से ही पता चल रहा है, तो बहुत ज्यादा है तो घर पे तो मैनेज नहीं हो सकता, इजंट इट? सो जब घर पे नहीं मैनेज हो सकता, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल भी अगर आप लेके जाते हो तो अकॉर्डिंग टू IMNC गाइडलाइन, अगर छोटे हॉस्पिटल में हो या द सब सेंटर कहीं पे आप जा रहे हो, दे आर गोइंग टू रेफर यू, ओके? सो ऐसे को बच्चे को हम रेफर करेंगे क्योंकि सिवियर है। अब प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स की बात है, तो ये कब करेंगे हम? जब फर्स्ट स्टेज या सिंपल निमोनिया भी कुछ सिम्टम्स ही आए हैं, सारे हैं, मतलब अभी सारे सिवियरिटी तक नहीं पहुंचे, जैसे फास्ट ब्रीदिंग, ठीक है, फास्ट ब्रीदिंग। सो बच्चा आया आपके पास फास्ट ब्रीदिंग के साथ, ओके, इट्स ओके, आप एंटीबायोटिक्स शुरू कर दो, ठीक है? जब हाथ से बात निकल रही है तब रेफर कर देंगे। Then instruct mother to continue breastfeeding. There is no use. क्यों? अब बच्चे को सांस नहीं आ रहा है, आप ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं फोकस करोगे ना। Airway is always priority. Airway breathing and circulation. Then instruct the mother to increase the fluid intake is also incorrect. Why? Because बच्चा dehydration के साथ नहीं आया है, बच्चा निमोनिया के साथ आया, right? Okay. चलो next one, the vaccine vial once opened can be kept for subsequent immunization sessions up to, so कितने टाइम तक अगर एक वाइल खुल चुकी है, आप इम्यूनाइजेशन कितने टाइम तक दे सकते हो? यहाँ पे प्लीज राइट द नंबर ऑफ डेज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे पुराने कमेंट्स दिख रहे हैं, तो ABCD से मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, राइट? सो आप प्लीज बताइए कितने दिन, either 10, 28, 20 और 45 days, what do you think? क्या लगता है आपको? प्लीज डोंट राइट ABC, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप पिछले का ही आंसर ना दे रहे हो। डू राइट द डेज। यस, थैंक यू अंकित, यू गेस्ड इट राइट, आप ध्यान से सुन रहे हो, वेरी गुड। 28 इज द साइन, वेरी गुड सभी का, वेरी गुड, इट्स 28 days। सो अगर एक वाइल ओपन हो जाती है, उसको जो भी एडिक्वेट टेम्परेचर उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें रखने के बाद आप 28 days यूज कर सकते हो। ये नहीं कि वो जो है हीट सेंसिटिव है और आप बाहर रख रहे हो रूम टेम्परेचर पे और वो आप यूज कर लो, ऐसा नहीं है। कौन सी वैक्सीन? अगर आपने कोल्ड चेन मेंटेन की है प्रॉपर, आप उसे अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर रख रहे हैं, ओनली देन it is useful for 28 days, right? चलो next question. Which of the following conditions is aggravated, मतलब और खराब हो जाएगी
by the use of combined oral contraceptives, right? So कौन सी ऐसी कंडीशन है जो और खराब हो जाएगी अगर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लिए जाते हैं? तो कौन सी ऐसी कंडीशन है, जल्दी से बताओ मुझे, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत खराब और सिचुएशन वर्स हो जाएगी अगर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लें? ये आपके चार ऑप्शंस हैं. Okay, Ambrin is saying B. Okay, Ambrin, just give me a reason for that. Why B? Any reason for that? Why B? Why does B? Most of you are saying endometriosis, but why? Give me a reason for that. Why endometriosis is the correct answer? In 45 days पे अभी कौन पिछले क्वेश्चन पे ही है? I want the reason for this ना. Why, which condition is aggravated? C. It is cervical ectopy. What do you mean by cervical ectopy? पता है किसी को? What is cervical ectopy? कौन बताएगा? Who is going to tell what is cervical ectopy? सुना है कभी ये नाम? And क्यों ये oral contraceptives के देने से ये और condition worse हो जाएगी? Yes. Anyone? Yeah. Yes, I'm waiting for your answers. What is cervical ectopy? जैसे एंडोमेट्रियोसिस होता है ना कि एंडोमेट्रियम के अंदर के टिश्यूज कहीं बाहर ग्रो कर गए हैं, वैसे ही होता है सर्वाइकल एक्टोपी, राइट? सर्वाइकल एक्टोपी कंपैरेटिव टू द एंडोमेट्रियोसिस इज मोर डेंजरस. एंडोमेट्रियोसिस को सिवियर फॉर्म में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज जगह मिल जाती है उसे ग्रो करने के लिए. सर्वाइकल एक्टोपी में जो सिम्टम्स हैं वो बहुत जल्दी आते हैं और बहुत सिवियर आते हैं. सो अगर ओसीपी दे दें हम इन सर्वाइकल एक्टोपी तो वो कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी, राइट? सो सर्वाइकल एक्टोपी, इफ वी गिव ओसीपी, व्हाट आर ओसीपी? ओसीपी में क्या है? ओसीपी में क्या होता है? हॉर्मोन्स, राइट? सो इसको हम सर्वाइकल एक्टोपी में हम नहीं देते हैं, हॉर्मोन्स नहीं देंगे, ठीक है? ओके, बिकॉज इसमें ऑलरेडी जो हॉर्मोन्स हैं वो काफी हाई लेवल के. व्हाट इट? ठीक है, किसी को डाउट है कोई? एनीवन एल्स? मैंने आपको क्लियरली बता दिया व्हाई इट्स नॉट एंडोमेट्रियोसिस. ओके, एंडोमेट्रियोसिस इसलिए नहीं है क्योंकि उसको सिवियरिटी तक पहुंचने में इवन ओसीपीज जो है वो खतरनाक एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी है, बट एक्चुअली हम उसको एक प्रिस्क्राइब्ड डोज में हम उससे ट्रीट भी कर सकते हैं. बट सर्वाइकल एक्टोपी में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी जो है हॉर्मोन्स दे आर लाइक दैट. यस, वेरी गुड. Mithu is there and gaze like a parents हो जाती है outside cervix, right? बट मेन यही है कि एंडोमेट्रियोसिस में जैसे एंडोमेट्रियम का टिश्यू बाहर ग्रो करता है, सर्वाइकल एक्टोपी में सर्विक्स का टिश्यू है जो बाहर ग्रो करता है. ओके, एंड कंबाइंड ओरल सेप्टिव पिल्स का करके ही कई बार ये हो जाता है. फाइन, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. Now it is from childhood nursing. All of the following are present in tetralogy of phallic except. So ये word आपको भूलना नहीं चाहिए. ऐसा ना हो आपको कि tetralogy of phallic का अच्छा मुझे आता है and मैं मार्क कर दूंगी, ठीक है? So it is like except कौन सा नहीं होता है. You have to tell which one is not included in tetralogy of phallic. फर्स्ट आपको पता होना चाहिए टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट होता क्या है. कोई इसे फैलो कहते हैं, कोई फैलेट कहते हैं.
So that depends on your pronunciation. बट होता इसमें क्या है, इसमें 4 कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। टेट्रा है तो मीन्स 4, सो 4 कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं बच्चे में। कंजेनिटल है, दैट मीन्स बाय बर्थ है। और इनमें क्या क्या होता है, इनमें से एक चीज नहीं होती है। यस पूजा शर्मा, एक्सेलेंट आंसर, इट इज पीडीए। पीडीए जो है वो टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट में नहीं होता है। सो जिन बच्चों को भूल जाता है उनको याद करने के लिए आई टेल यू निमोनिक फॉर टेट्रोलॉजी ऑफ पैलो। आप कैसे याद रख सकते हो टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट के लिए एक निमोनिक है विच इज PROVE, right? So P is for pulmonary stenosis. Pulmonary stenosis, ठीक है। जो pulmonary stenosis means कि narrowing हो जाती है, ठीक है। So pulmonary vessels जो है वो narrow हो जाती हैं। Then R is for right ventricular hypertrophy. Right ventricular hypertrophy कि जो राइट वेंट्रिकल है उसे इतना काम करना पड़ता है कि वो हाइपरट्रोफाइज, इंक्रीज इन साइज हो जाएगा, राइट। देन वी हैव ओवर राइडिंग, O इज फॉर ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा। आयोटा, ठीक है। आयोटा की पोजीशन भी जो है वो चेंज हो जाती है। एंड देन वी हैव VE, लास्ट VE, इसलिए मैंने E छोटा लिखा है। इट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। सो ये चीजें होती है TOF में। सो बचता क्या है हमारे पास, मैंने कहीं पे आपको नहीं बताया कि PDA होता है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ कि आपको एग्जाम में भी नहीं भूलेगा अगर आप ये निमोनिक याद रखोगे, ठीक है। Yes, very good. Okay, everybody is participating really well, and that's really good. कि आपसे बाकी बच्चे भी सीख रहे हैं, and you are also contributing. Okay, then coming on to the next question, which is Mr. A experiencing alcohol withdrawal. So alcohol withdrawal के साथ आपके पास एक patient आया है। Just remember one thing, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, ठीक है, जैसे इसमें BP बता दिया है, पल्स बता दी है, डायफोरेसिस है, हाइपर एक्टिविटी है, ट्रेमर्स है, ये सारा कुछ उन्होंने काफी बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। बट देयर इज ऑलवेज अ की टर्म जो आपने आइडेंटिफाई करनी है। मैंने पिछले सेशन में भी बोला था, अगेन आई एम सेइंग की टर्म को फाइंड आउट करो। अगर आप वो की टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन, राइट। अब मैंने यहाँ अल्कोहल विड्रॉल को अंडरलाइन किया है। क्यों अंडरलाइन किया है? बिकॉज दिस इज योर की टर्म। सो एक आपके पास पेशेंट है ए नाम का जिसको अल्कोहल विड्रॉल हो रहा है। सो सिंपली आप लास्ट लाइन पे आइए, विच ऑफ द मेडिकेशन वुड द नर्स एडमिनिस्टर। तो डेफिनेटली आप वही एडमिनिस्टर करोगे ना जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अल्कोहल विड्रॉल का, इजंट इट। सो ये जो अगर आप नहीं भी पढ़ते हो ट्रेमर्स, डायफोरेसिस, ये क्या दिए हुए हैं? अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स हैं ये। सो ये जो सारे हैं ये इसी के सिम्टम्स हैं, राइट। सो क्योंकि इसी के सिम्टम्स आप नहीं भी पढ़ोगे, उन्होंने खुद ही बता दिया कि इट इज अल्कोहल विड्रॉल। सो बेसिकली आप ऐसे टाइम सेव कर सकते हो, नॉट ऑलवेज बट यस many a times you can save your time with this, okay? क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी करके चलना है। सो अल्कोहल विड्रॉल में कौन सी ड्रग हम देते हैं? ओके, राइट पूजा, इट इज none other than lorazepam. So lorazepam, Ativan, this is the main treatment for alcohol withdrawal. ठीक है, okay. Next question is, intrauterine infection of rubella causes the following defects in the baby, but एक यहाँ पे क्या है? Except. So rubella आपने जरूर सुना होगा,
congenital rubella, yeah, congenital rubella syndrome. So when it is the word syndrome is there, syndrome का मतलब होता है बहुत सारे clinical features या बहुत सारे clinical manifestations, बहुत अलग अलग चीजों के मिलने से जो है syndromic हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग conditions में भी. So congenital rubella syndrome बच्चों में होता है, कब होगा? अगर इंट्रायूट्राइन रूबेला इंफेक्शन हो जाए. नाउ उन्होंने पूछा है कौन सा इंफेक्शन इससे नहीं होगा. ओके, सम ऑफ यू आर सेइंग ए, सम ऑफ यू आर सेइंग डी, और बता दो, देन आई टेल यू द करेक्ट आंसर. बताओ और बताओ कौन सा आपको लगता है, ए बी सी और डी. सम आर सेइंग ए, सम आर सेइंग डी. ओके, सो लेट मी टेल यू. एक चीज याद रखना, रुबेला जो है ना यूजुअली हमारी सेंसरी, जितने सेंसरी ऑर्गन्स है ना उनको इफेक्ट कहीं ना कहीं करता है. सो डेफिनेटली देयर इज सेंसोरी न्यूरल डेफनेस. अब सेंसरी ऑर्गन आई भी है तो कैटरैक्ट भी है, एंड प्लस इट ऑल्सो कॉजेज कंजेनिटल हार्ट डिजीज. हार्ट पे भी असर करता है रुबेला. सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज इम्परफोरेटेड एनस. Now, what is imperforated anus? कि normally जब आप newborn assessment करते हो, we always check for this patency of anus. कैसे check करते हैं? कौन बताएगा मुझे? Who is going to tell you? In SNC we used to check this. कैसे check करते हैं? Patency. How do we check? ये मैं एक extra आपको clinical question बता रही हूँ. How we check? Pooja Sharma, why are you confused and in which question? Kindly tell me. I clear you doubt here itself. First tell me how you check the patency of anus. Anus open है, close है, कैसे check करते हो? Who is going to answer? कैसे check करते हो? I'm waiting for the answers. Sonia is saying rectal thermometer. Okay, Sonia. Nowadays we have changed the method. Rectal thermometer से ठीक है कर सकते हैं. Books में rectal thermometer है. Anything else? Okay. We can check it with the Riles tube also. कोई भी suction catheter Riles tube we have to insert. Thermometer एक level तक जाता है ना. आप अगर थोड़ा और, वैसे तो इम्परफोरेटेड है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा ना. अगर मतलब परफोरेटेड नहीं है तो जाएगा ही नहीं. परफोरेटेड मींस होल बना है, एनल ओपनिंग बनी है. लेकिन अगर एनल ओपनिंग नहीं है, दैट इज इम्परफोरेटेड एनस. तो उसमें रुबेला का कोई कसूर नहीं है. रुबेला ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब एनल ओपनिंग बन रही थी ड्यूरिंग दी फीटल लाइफ, उसी टाइम पे वो जो है ओपनिंग बन नहीं पाएंगे. ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट पूजा, इट्स क्लियर नाउ. ठीक है, सो एंड इम्परफोरेटेड एनस इसीलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें रुबेला का कोई रोल नहीं है. चलो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत क्वेश्चंस हैं, पढ़े जल्दी करते हैं थोड़ा. What is the best nursing strategy to implement in an immobilized patient? Immobilized है और हम क्या करना चाहते हैं? We want to avoid joint contractures. Joint contractures, ठीक है. जॉइंट जो है वो contractures ना डेवलप हो जाए. कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जल्दी. एम्बुलेशन करेंगे या फिजिकल थेरेपी करेंगे या कंटिन्यूअस पैसिव मोशंस करेंगे या रेंज ऑफ मोशंस करेंगे? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes. What according to you as a nurse, आप सोचो कि आप immobilized patient आपके पास है, उसको contractures ना डेवलप हो जाए, what you are going to do? Excellent. Everybody is giving correct answer. Great. So it is continuous passive motion. So उसको passively move करते रहना है थोड़ा बहुत, ताकि joint contractures ना हो जाए. ठीक है, so passive motion is the best answer.
Excellent. Everybody is doing really well. So ये 26 जो ऑनलाइन है आज लाइव सेशन में, आई रियली होप कि आप सबका क्लियर हो एग्जाम. आई थिंक 173 सीट्स आर देयर, सो 26 तो आप सारे ले ही लोगे. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. एंड ऑब्वियसली यू आर डूइंग रियली वेल, तो कर ही लोगे. ठीक है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. A substance present in the breast milk that protects the baby from enteric infection. So हमने उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो इंफेक्शन से बचाएगा, स्पेशली एंटेरिक. ठीक है, पेट के इंफेक्शन से. कौन सी ऐसी चीज होती है जो मदर्स मिल्क में होती है? यस, क्विकली राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से लिखो. ओके, आई हैव गॉट एन आंसर. कह रहे हैं कि पैरामाइनोबेंजोइक एसिड. कोई कह रहे हैं लाइसोजाइम्स. और कुछ? ए और डी रह गया है, वो भी बोल दो. है कोई जो जिसको लगता है ए है या डी है? कोई है ऐसा जिसको लगता है ए एंड डी है? आई एम सो सॉरी टू से, नजर लग गई मुझे लग रहा है. मेरी ना लग जाए नजर क्योंकि इस बार सबने गलत आंसर दिया है. डोंट वरी, इट्स ओके. द करेक्ट आंसर इज लेक्टोफेरिन. द करेक्ट आंसर इज लेक्टोफेरिन. नो, लेक्टोफेरिन जो है, इट इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज एंटी इन्फेक्टिव. ओके, एंटी. अब नहीं मैंने बोलना कि सारे आप करेक्ट आंसर क्यों दे रहे हो. अब बोलना ही नहीं है. जब आपका रिजल्ट आएगा ना तब बात करेंगे. ठीक है. ओके, सो एंटी इन्फेक्टिव है ये, राइट. प्लस immunology, like if we talk about immunity, it gives immunity. Okay, and it also prevents against the basic enteric infections, क्योंकि यही इसी की स्पेशली enteric infections के लिए ही ऊपर वाले ने बना के भेजा है, राइट. ओके, एंड अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो बच्चों में बहुत कॉमन एक बीमारी होती है, दैट इज नेक्रोटाइजिंग एंटीरोक्योलाइटिस. नेक्रोटाइजिंग एंटीरोक्योलाइटिस. ठीक है. सो ये बीमारी से प्रिवेंट करता है. ठीक है. ओके, देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. IUCD can be used after unprotected sex as an emergency contraceptive within कितने दिन के अंदर IUCD can prove to be an emergency contraceptive. What is IUCD? IUCD क्या है? इंट्रा-यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. ठीक है, बर्थ को रोकने के लिए. 7 years की भी आती है, 375 कॉपर वाली जो आती है, एंड 380 is also available. That gives protection for 10 years, right? Okay. Yes, excellent answers. 5 days. So 5 दिन के अंदर अगर IUCD after unprotected sex insert कर देते हैं, it can stop the development of zygote, or it can stop the conception, right? Okay. Which nursing action would be most effective in changing the behavior of a child with ADHD? ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. ठीक है. सो कौन सा नर्सिंग एक्शन होगा जो ADHD वाले बच्चे होते हैं, they can't sit at one place, plus they have concentration problems. So ऐसे बच्चों के लिए what you are going to do? Yes, give me the correct answers. What you are going to do? क्या करोगे? ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करोगे? मेरा बेटा भी बहुत हाइपर एक्टिव है, एंड लिटरली आई वेंट टू द डॉक्टर ये देखने के लिए कि ADHD तो नहीं है. बट थैंक गॉड नहीं है ADHD, बिकॉज ही इज गुड इन स्टडीज, ओवरऑल वेरी गुड इन म्यूजिक, हर तरह से सही है, बट कंसंट्रेशन इज ऑल्सो गुड. बट
आजकल डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, whether it is ADHD or not. So ADHD, okay. So most of you are saying that there should be reward appropriate behavior. Yes, that is correct. Reward appropriate behavior होना चाहिए. बच्चे को अप्रिशिएट करना है छोटी छोटी चीजों के लिए. अच्छी चीजें कर रहे हैं तो गिव स्माइलीज, राइट. हाथ पे स्माइलीज आजकल सभी, आई थिंक किंडरगार्टन एंड एवरी स्कूल डज दिस. उसके हाथ पे स्माइली बना दो. अगर लग रहा है कि इट इज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर तो उसको बोलो कि आज स्माइली आपको नहीं मिलेगी, राइट. सो ऐसे कुछ ट्रिक्स करने हैं जिससे कि बच्चा जो है ज्यादा कंसंट्रेट करे. ओके, चलो नेक्स्ट वन. Blood flow through the coronary arteries primarily occurs during. कब होता है coronary arteries में blood कब जाता है? इंस्पिरेशन के थ्रू, एक्सपिरेशन के टाइम पे, सिस्टोल में या डायस्टोल में? इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, सिस्टोल एंड डायस्टोल, व्हिच वन? जल्दी से बताओ कब जाएगा. या ये आपका सर्कुलेशन में से है, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी बोथ, ठीक है, उसमें से है कि कौन सी स्टेज है जिसपे कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड जाता है. नॉर्मली तो आपने पढ़ा होगा, राइट एट्रियम से आया, वेंट्रिकल में गया, है ना, फिर सारा वो प्रोसेस होता है और सिस्टोल डायस्टोल सारा कुछ होता है. इसमें क्या आंसर है? वेरी गुड. Yes, so the correct answer is diastole. Okay, diastole. जब what is diastole? जब relaxation होती है, जब relaxation होती है. So जब relax होगा, ठीक है, जब coronary, जब पूरा हार्ट की हम बात करें, जब सर्कुलेशन जाती है, आयोटा जब रिलैक्स हो जाता है तो ब्लड कोरोनरी आर्टरीज में जाना शुरू कर देता है. ठीक है. Yes, very good answer. Everybody is participating. That's great. So Ritika, next version, and Archana, Deepika, Prakriti, nice. Okay, then in a rural area, the administrative unit of an ICDS project is. So first, tell me the definition of ICDS. क्या है ICDS की definition? ICDS क्या डेफिनेशन है? जल्दी, सॉरी, फुल फॉर्म क्या है? डेफिनेशन में फुल फॉर्म क्या है? ICDS. What is the full form of ICDS? I'm seeing that more and more students are joining now, but उनके starting के miss हो गए because we started with I think 20 students. I'm not asking the correct answer. I'm saying what is the full form of ICDS? Very good, Janvi. It is Integrated Child Development Services. कहीं पे scheme भी लिखा है. That is also correct. ठीक है. Scheme services both are correct. अब ये बच्चों के लिए होती है, ठीक है. अब रूरल एरिया में कौन जो है वो देखता है इसे? सो रूरल एरिया में कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के लेवल पे इसको मैनेज किया जाता है. ठीक है. सो ICDS को कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, राइट. चलिए, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन और इजी भी है. माइलस्टोन्स पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सो प्लीज मेक योर माइलस्टोन्स स्ट्रॉन्गर. निमोनिक याद कीजिए, कुछ कीजिए, बट याद कर लीजिए. ठीक है. माइलस्टोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. सो इन्होंने बोला है कि 4 मंथ्स का इंफ्रेंट है, 4 to 5 मंथ्स का. अब वो क्या करे? इनमें से कौन सी अप्रोच है? कौन सी अप्रोच जो है इसमें होगी? जल्दी से बताओ कौन सी अप्रोच होगी. बताइए. ओके, साइनिंग सी. ठीक है, आगे बोलिए और बताइए. देन आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर. Yes, which one is correct? Some are saying B, some are saying C, some are saying D also. Why D?
माइलस्टोन्स आर रियली इंपॉर्टेंट, सो काइंडली वर्क ऑन द माइलस्टोन्स, ठीक है। सो देखिए एज ग्रुप क्या दिया है, 4 months to 5 months. Okay, some are saying bidextrous approach. अच्छा, तो अगर जो बाइडेक्स्ट्रस कह रहे हैं तो यूनिडेक्स्ट्रस कब आती है ये बताओ। Why not 4 to 5 months unidextrous? Yes, right. Okay. Yes, bidextrous approach is correct answer. Bidextrous का मतलब क्या है? Let's suppose बच्चे को आपने कुछ पकड़ने के लिए दिया, पेन दे दिया, बच्चे ने कैसे पकड़ना है, दोनों हाथों से, दोनों हाथों को इन्वॉल्व करके, बाय डेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से पकड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अराउंड 6 months, ठीक है, इसके बाद आती है यूनिडेक्स्ट्रस अप्रोच। उसमें आप बच्चे को पेन पकड़ाओ, वो एक हाथ से पकड़ेगा, राइट। सो इसीलिए ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। माइलस्टोन्स प्लीज डोंट मिस द माइलस्टोन्स, जरूर याद करिए, माइलस्टोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम बात करें अबाउट द अदर वंस और हमारे ऑप्शंस, अच्छा इमेच्योर पिंसर ग्रास्प कब आता है, हु इज गोइंग टू टेल इमेच्योर पिंसर ग्रास्प? ओके, लेट मी सी हु हैज आंसर्ड इमेच्योर। अच्छा, पूजा सेज इमेच्योर कम्स एट 9 months, और बताओ। यस पूजा, यू आर करेक्ट, यू नीड एक्स्ट्रा 6 months को मैंने बता दिया हुआ है। इमेच्योर पिंसर ग्रास्प कब आता है? इमेच्योर पिंसर ग्रास्प का कोई और नाम भी है? इट्स 9 to 10 months अप्रोक्स, ठीक है, 9 to 10 months पे आ ही जाता है। एंड इंटरमीडिएट पिंसर ग्रास्प, इंटरमीडिएट बताओ, इंटरमीडिएट किसे कहते हैं हम? मेच्योर की साइड आता है या इमेच्योर की साइड आता है? इमेच्योर की साइड आता है, ठीक है। सो ये जो है इमेच्योर, जो सॉरी मेच्योर की साइड आता है इंटरमीडिएट की, इमेच्योर और मेच्योर के बीच में है, सो मेच्योर वाली साइड ज्यादा जा रहा है। सो ऑब्वियसली अगर 9 to 10 months इमेच्योर है तो इंटरमीडिएट उसके बाद ही होगा। सो आफ्टर 10 months इज इंटरमीडिएट पिंसर ग्रास्प। पिंसर ग्रास्प किसे कहते हैं? एक पाल्मर होता है, एक पिंसर होता है। पाल्मर पाम के साथ पकड़ना, पिंसर फिंगर्स के साथ, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A blocked tracheostomy is best recognized by which of the following? कैसे पता चलेगा कि ट्रेकियोस्टमी ब्लॉक है, आपके पेशेंट की ट्रेकियोस्टमी ब्लॉक है, आपको कैसे पता चलेगा? जल्दी से बताओ कैसे पता चलेगा। क्विक क्विक क्विक, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, जल्दी बताओ कैसे पता चलेगा। हम्म, जल्दी जल्दी जल्दी, आई थिंक मेरे को मैसेजेस लेट मिलते हैं, उससे उस उतने टाइम में हम टू वेट। ओके, सो ब्लॉक्ड ट्रेकियोस्टमी है तो सिंपल, सबसे इजी है, यस, इनएबिलिटी टू पास द सक्शन कैथेटर टू करेक्ट डेप्थ। जब सक्शन कैथेटर डालने की कोशिश करोगे वो जाएगा नहीं जितना नॉर्मली जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आपने ब्लॉकेज चेक करनी है तो इंसर्ट करके आप चेक कर सकते हैं। ऑब्जर्विंग डीसैचुरेशन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो किसी और रीजन से भी हो सकती है। बीइंग अनेबल टू फील एयर, वो भी एक पक्का तरीका नहीं है। हेयरिंग एबनॉर्मल साउंड्स, दैट द रीजन इज अगेन डिफरेंट, ठीक है। चलो ओके, नाउ ये आप मुझे कैलकुलेट करके दोगे। एक स्केल होता है ग्लासगो कोमा स्केल। सो एक हेड इंजर्ड पर्सन आपके पास आया है, नंबर 1, वो अपनी आईज ओपन कर पा रहा है टू पेनफुल स्टिमुलस, ठीक है, कंफ्यूज्ड है एंड लोकलाइजेस पेन, पेन को लोकलाइज कर रहा है। ये 3 पैरामीटर आपको बता दिए गए हैं। तो इसमें इस केस में टोटल स्कोर क्या हो, जल्दी से बताइए, व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल स्कोर? यस पूजा, बेस्ट आस्क्ड।
ठीक है, बेस्ट वाला आप आंसर करो। सिंपल थिंग्स फर्स्ट, सबसे सिंपल चीज तो यही करके देखो ना कि उसे इंसर्ट करके देखोगे, राइट। अच्छा, इसमें बताइए मुझे ग्लास को कॉमा स्केल कैसे मेजर करते हो? हाउ डू यू मेजर ग्लासगो कॉमा स्केल? जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी बताइए। ग्लासगो कॉमा स्केल होता क्या है कि हम अनकॉन्शियस पेशेंट में यूजुअली देखते हैं कि स्टिमुलस देके अपनी आंखें खोल रहा है कि नहीं, कितनी मूवमेंट है, ठीक है, ओरिएंटेड है कि नहीं। पूजा इज सेइंग 11, 2, 4 and 5. Okay. Yes. Very good. So 2 for opening the eyes with stimulus, 4 for confusion and localized pain के लिए 5. So the total comes out to be, sorry, 2 and 4 total, 2, 4 and 5 and total comes out to be 11. Right, right. Everybody is right. Glasgow scale में जब हम इसका total करेंगे तो it comes out to be 11. Right. चलो, moving on to our next question. The government of India launched 𝐏𝐥𝐚𝐧 for tracking and monitoring the patients with very very easy question. ये आपने बहुत बार देखा होगा, सुना भी होगा इसके बारे में, फ्यू ग्रोथिंग। कौन सा है, कौन सी बीमारी के लिए वी हैव दिस प्रोग्राम? जल्दी से राइट योर आंसर्स। कौन सी बीमारी के लिए वी हैव दिस प्रोग्राम? एक्सीलेंट, इट इज फॉर टीबी। सो इसमें ज्यादा कुछ सोचने समझने वाली चीज नहीं है। 𝐏𝐥𝐚𝐧 एक है जो टीबी के लिए होता है, राइट। ओके, देन clay colored stool in jaundice is due to, क्यों jaundice में क्यों clay colored stool होता है? Who is going to tell? Very very easy question, this is also very easy question कि jaundice में clay colored stool क्यों होता है? yes, very good. The correct answer is obstructive jaundice. क्योंकि jaundice में क्या है, बिलीरुबिन इंक्रीज हो रहा है ना, बिलीरुबिन आता है, बिलीरुबिन ही आगे बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है और वो आगे जो कलर प्रोवाइड करता है स्टूल को वो करता है। सो अगर जॉन्डिस हो रही है, स्पेशली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो मतलब कि बिलीरुबिन जो है मतलब वो पहुंच नहीं पा रहा है, राइट। Yes, obstructive jaundice is the correct answer. Very good. Okay. Sabika has given the correct answer. Okay. A client has just been intubated for placement on mechanical ventilation. What is the priority assessment for confirming the ET tube placement? ठीक है, ET tube placement कैसे चेक करोगे? मैकेनिकल वेंटिलेशन पे आपने पेशेंट को डाला है, वेरी इजी। यस बच्चे, मैं नेक्स्ट पे भी पहुंच गई हूँ, बाद में कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, जल्दी से बताइए कि कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि कंफर्म है ईटी? दिस इज अ क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन। आई टेल यू व्हाई इट इज ट्रिकी। Most of you are saying B. Most of you are saying yes. That is the correct answer. So end tidal carbon dioxide monitoring is very very essential for checking the or confirming the ET tube placement. और अगर मैं बोलूं कि आपने राइल्स ट्यूब या नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को असेस करना है तो आंसर क्या होता? तो बेस्ट आंसर क्या होगा? कैसे असेस करेंगे द प्लेसमेंट? Yes, Pooja, X-ray is the best confirmation, but because here it is a matter of the airway breathing, right? Airway breathing is compromised, so हम chest X-ray की रेट नहीं कर सकते unless we have a portable one, right? So N tidal carbon dioxide जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को ऑफ एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई में एम्प्टिंग जो हो रही है उसकी, ठीक है, राइट। फॉर एनजी इट इज चेस्ट एक्सरे। चलो नेक्स्ट,
In which of the following circumstances is breach of confidentiality appropriate? Like, what is breach of confidentiality? नर्सिंग एथिक्स है कि एज अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप हम पेशेंट की हर चीज को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। कौन सी ऐसी चीज अगर आप करते हो जिससे कि ब्रीच, आप तोड़ देते हो उस रूल को कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखी? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताओ। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी in which of the following circumstances or circumstances breach of confidentiality हम कर सकते हैं? किस केस में हम कर सकते हैं? वेरी गुड जानवी। करेक्ट आंसर इज क्लाइंट थ्रेटनिंग अनदर क्लाइंट टू डू हार्म। इस केस में फिर कुछ चीजें जो है हम कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते हैं। उस केस में हमें बताना पड़ता है, मे बी इट इज रिलेटेड टू द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट या कोई वो कुछ भी हम यहाँ पे ब्रीच कर सकते हैं। वी आर फ्री टू डू दैट, राइट? ओके, देन सो वी कैन डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ताकि सामने वाला जो है बच सके, आइदर टू द पुलिस पर्सोनल्स या जिसको भी करनी है, यू कैन, यू आर फ्री टू डिस्क्लोज। ठीक है, चलो। व्हाइल टर्मिनेटिंग एन इंटरव्यू, ठीक है, सो इंटरव्यू एक था नर्सिंग एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा होगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टेक्निक टू इम्प्लीमेंट। जब आप क्लोज कर रहे हो इंटरव्यू, स्टेजेस होती हैं इंटरव्यू की, जब आप क्लोज कर रहे हो इंटरव्यू तो कौन सी टेक्निक का आपने ध्यान रखना है? यस, जल्दी से बताइए। व्हेन यू आर क्लोजिंग द इंटरव्यू, अब मैं भी जब आपके साथ बात कर रही हूँ, वी आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, एंड में व्हाट आई डू? यस, वेरी गुड, वी समराइज थिंग। आज हमने क्या क्या किया? इवन व्हेन यू गिव टीचिंग्स, राइट, लेसन प्लान बनाते हो, एंड में क्या लिखते हैं? समराइजेशन। सो फॉर एवरी communication, the best technique to end the communication is through summarization. ठीक है, चलो नेक्स्ट। बच्चा, I want everyone to participate। चाहे आप गलत आंसर भी दो, please, we have 32 students right now live, so please kindly just participate। नहीं आता है कोई बात नहीं, सारे यहाँ पे अपने ही हैं, so वो घबराने की जरूरत नहीं है। I won't take your name कि आपने गलत आंसर किया है, राइट? पर कोशिश करो, ओके? The type of audit in which a group of nurses assesses the records of care done by other nurses. So what is being done? Audit हो रही है, ग्रुप ऑफ नर्सेज जो हैं वो दूसरी नर्सेज, अपने जो दूसरी नर्सेज हैं उनको ऑडिट कर रही है। दिस इज वेरी इजी, everybody can answer that, very good। This is retrospective audit, this is retrospective audit, right? Okay, किसी को कोई डाउट है इसमें? Why it is retrospective? Yes, okay, some are saying peer review audit is the correct answer. Peer review audit is the correct answer. See, if I talk about this, वैसे nurses are reviewing nurses, that is a peer review also, but the best answer is retrospective. Why? Because the work has already been done, records are there, and you are assessing the records. ठीक है, peer review हम इसमें नहीं कहेंगे। Why we are not going to say peer review? Because see, जो हमें यहाँ पे clear नहीं है, either the same batch peers are of the same group ना, so we can't here justify। question में ऐसा कुछ clear नहीं है, nurses का nurses कर रही है exactly, but peer जो है वो नहीं। Yes, I am explaining. Retro means कि देखो यहाँ पे एक word लिखा है ना, records, you are assessing the records। अगर हम present time का बात करते तो then it must be peer review, but हम यहाँ past के records को assess करते हैं, isn't it? So वो keyword जो यहाँ पे इन्होंने use किया है records, that is
रिकॉर्ड्स कर रहे हैं तो इट इज द ब्रॉडर एस्पेक्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव। इज इट क्लियर नाउ? क्यों हम रेट्रोस्पेक्टिव को क्लियर करेक्ट कर रहे हैं? ब्रॉडर इज रेट्रोस्पेक्टिव। स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे कि नर्सेस को एज सच रिव्यू कर रहे हैं प्रेजेंट कंडीशन में, देन इट इज गोइंग टू बी पीयर रिव्यू ऑडिट। ठीक है, सो आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शंस दिए हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? अभी भी डाउट है किसी को? So this was a tricky question ताकि थोड़ा कंफ्यूजन कर सके, राइट? एनी डाउट? यस, द कीवर्ड वाज रिकॉर्ड। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऐसे आपको मे बी ना आए, बट स्टिल यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट। ओके, चलो नेक्स्ट। Schiller's test is done to visualize the cervix after applying. So क्या अप्लाई करते हैं और फिर करते हैं Schiller's test? चलो बताओ जल्दी से, क्या अप्लाई करते हैं और फिर हम करते हैं Schiller's test? ओके अर्चना, मैं पीछे चली गई हूँ। ओके, आई एक्सप्लेन। फॉर्मेटिव ऑडिट, फॉर्मेटिव है कि एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड प्री फॉर्म्ड क्राइटेरिया है और उसके बेसिस पे ऑडिट हो रही है, वेरी फॉर्मली। बहुत रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, स्ट्रिक्ट बोर्ड है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हो रही है। समेटिव इज कि आप क्या करते हो, फॉर्मेटिव एंड समेटिव वैसे हमारे अगर आप नर्सिंग एजुकेशन के हिसाब से देखें तो हम ये भी बोलते हैं कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव इज समथिंग लाइक जो हम करते हैं विद इन अ पीरियड, जैसे 6 मंथ्स के बाद कर ली एंड देन लास्ट में एक 1 ईयर के बाद कर ली। सो फॉर्मेटिव एंड समेटिव में ऑडिट्स में हम वो भी करते हैं। क्योंकि वर्ड ऑडिट है, वी आर फोकसिंग मोर ऑन मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, असेसमेंट होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट, तो नर्सिंग एजुकेशन में इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, सो ये एक डिफरेंस है। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं आयोडीन पे, हम भी आयोडीन पे पहुंचते हैं। सो फॉर्मेटिव, इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मेटिव एंड समेटिव assessments होती है when it comes to the nursing education, and अगर ऑडिट की बात करें तो मेन डिफरेंस अगर हम फॉर्मेटिव एंड समेटिव में देखें तो फॉर्मेटिव जो है वो यूजुअली हम वेरी कुछ इंस्टेंसेस पे कर लेते हैं। ठीक है, समेटिव आप हमेशा एंड में करोगे। ठीक है, चलो एक और है, जैसे समेटिव में आप यू टेक द फाइनल डिसीजन कि वेदर, लेट्स सपोज आप कहीं की ऑडिट करते हो तो वहां पे ये कंटिन्यू होना चाहिए प्रोग्राम कि नहीं होना चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग इज मोर इन समेटिव टाइप, राइट? एनीवन एल्स? समेटिव एंड फॉर्मेटिव ऑडिट, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, फॉर्मेटिव एंड समेटिव ऑडिट में। सिंपल सा अगर मैं एजुकेशन के हिसाब से, इवन ऑडिट के हिसाब से मैं बताऊं तो लेट्स सपोज 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने के एंड में ऑडिट कर लेते हैं। ठीक है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, हॉस्पिटल हो, सो दैट इज समेटिव। ठीक है, आप कुछ टाइम पीरियड देते हो और उसके बाद आप ऑडिट कर लेते हो। यस, दे आर असेसमेंट टेक्निक्स, अगर हम नर्सिंग एजुकेशन में पढ़े पूजा, एंड दे आर ऑडिट्स की भी सेम ही है, बट ऑडिट हम मैनेजमेंट में करते हैं। सो ऑडिट में उसका थोड़ा सा डिफरेंस, जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, राइट? ओके, फाइन। सो समेटिव एंड फॉर्मेटिव में यही मेन डिफरेंस है कि यूजुअली दे आर हम थोड़े टाइम के लिए करते हैं। अगर जैसे बच्चों के, अगर मैं एजुकेशन में बताऊं रोज के टेस्ट हो रहे हैं, या अगर मैं ऑडिट में बताऊं रोज आप मैनेजर जो है वो आके पूछ रहा है, या नर्सिंग सिस्टर आके आपसे पूछ रही है आपने रोज क्या काम किया है, दैट इज फॉर्मेटिव। अगर 2 3 4 महीने के बाद पूछेगी तो दैट इज सबमिटेड।
ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए एंड देन वी टॉक मोर अबाउट इट आफ्टर वी ऑन द लाइव डेमो सेक्शन. ठीक है, ओके. सो शेयर टेस्ट का क्वेश्चन था. यस, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. इसमें हम क्या करते हैं, आयोडीन यूज करते हैं टू विजुअलाइज द सर्विक्स. मैं एक पिक्चर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाई हुई है. यू कैन सी दिस पिक्चर कि हम आयोडीन यूज करके कैसे विजुअलाइज करते हैं सर्विक्स को. Yes, Pooja, and we are eliminated. Come to question number 27. ठीक है, सो ऑस्टियम जो है, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सर्विक्स का फिगर ए में. उसके बाद आयोडीन पॉजिटिव एपिथेलियम जो है वो अप्लाई किया जाता है. एंड सी द डिफरेंस कि आयोडीन डालने से कितनी जल्दी कितना अच्छा विजुअलाइज हो जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. What does it mean when kurtosis is less than 0? So ये क्या है, ये है रिसर्च का क्वेश्चन. ओके, सो अगर हम कहते हैं कि kurtosis, ये क्या है, 3 तरह के कर्व्स होते हैं. ठीक है, हमारे पास है kurtosis होते हैं. मैं लिख ही देती हूँ, एक तो लिखा ही हुआ है. I'm not getting your comments, the recent comments. चलो, meanwhile I'll write this. Number 1 is kurtosis. Number 2 is mesokurtic. Number 3 is leptokurtic. ठीक है, एक और भी होता है वैसे, that is platykurtic. platykurtic. ठीक है, सो ये जो है हमारे पास कर्व्स होते हैं अलग अलग. हाँ, अलग अलग टाइप्स के कर्व्स होते हैं. ठीक है, सो kurtosis के बेसिकली kurtosis के ही ये 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, सो वी कैन कंसीडर देयर एज 1 2 एंड 3. kurtosis के ये 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के कर्व्स बनते हैं. अब ये कहते हैं कि अगर kurtosis इज लेस देन 0, ठीक है, अगर kurtosis जो है वो लेस देन 0 है तो हम उसे क्या कहेंगे. यस, द करेक्ट आंसर इज platykurtic. ठीक है, platykurtic अगर लेस देन 0 है. इसकी मैं आपको एक इमेज भी दिखा देती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए. सो kurtosis अगर है लेस देन 0, हमारे पास 3 टाइप्स हैं. उसमें से कौन सी टाइप का कर्व कहलाएगा, दैट इज platykurtic. ये देख लीजिए. ठीक है, सो नेगेटिव kurtosis है. ठीक है, जो ग्राफ हमारा बनता है. यस, ठीक है, सो platykurtic में क्या है, देखिए फ्यू वैल्यूज हैं इन द टेल्स एंड फ्यूअर वैल्यूज क्लोज टू द मीन. जो मीन निकलता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एवरेज को हम मीन कहते हैं. सो मीन के पास बहुत कम वैल्यूज है, इसलिए वो एक फ्लैट कर्व आ रहा है. मीन्स लेस देन 0 वैल्यूज है तो एक फ्लैट कर्व आएगा. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate the IQ of a child whose mental age is 8 years and chronological age is 10 years. अब IQ का फॉर्मूला क्या है. Yes, what is the formula of IQ? क्या फॉर्मूला है IQ का. IQ का फॉर्मूला है मेंटल एज ओवर chronological एज, मतलब कितनी होनी चाहिए, इनटू 100. सो अगर हम यहाँ मेंटल एज की बात करें, दैट इज 8 years, chronological एज इज 10 years. सो क्या करेक्ट आंसर आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 80. यस, वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी 80. नाइस, वेरी गुड. चलो, ये सब आते हैं आपको. ओके, चलो नेक्स्ट वन. Holosystolic murmur is seen in. So holosystolic murmurs होते हैं जो, वो किस कंडीशंस में आपको देखने को मिलेंगे. Holosystolic murmurs आपको किस में मिलेंगे. यस, यस, द करेक्ट आंसर इज ventricular. यहाँ पे ASD लिख दिया गलती से, सॉरी. इट इज ventricular septal defect. Okay, it is ventricular. This is the correct answer. Ventricular septal defect.
ठीक है। सो ब्लड जो है एबनॉर्मली फ्लो कर रहा है एंड देयर इज हाई प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड देयर इज लो प्रेशर इन राइट वेंट्रिकल, फाइन। सो वीएसडी उसके उससे क्या होगा, होलो सिस्टोलिक मर्मर्स होंगे एंड इट इज इन द VSD, right? Okay. Then, which of the following components of DT vaccine causes neurological problem? So, इसमें से कौन सा component है? What is DPT? DPT is diphtheria, pertussis and tetanus. So, DPT में से कौन सा ऐसा component है जो neurological problems कर सकता है? Which component? Yes, very good. So the correct answer is pertussis. Please याद रखेंगे pertussis जो है DPT में that causes neurological symptom. कहीं उन्होंने tetanus भी I think बोला है, but not tetanus. It is the pertussis. ठीक है? So pertussis कैसे करता है? ये जो GABA है, ठीक है? उस सिस्टम GABA सिस्टम को ये डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है? चलो. Echolalia is associated with which group? Now, first, what is echolalia? किसे कहते हैं echolalia? And किस age group में होता है? So, जल्दी से बताइए. What is echolalia? Echolalia किसे कहते हैं? Yes, very good. Echolalia is the repetition. Okay, the echolalia is the literal or the rote word हम use करते हैं, literal और rote repetition. ठीक है, वर्ड्स को रिपीट करे जाता है, स्पीच को दूसरों को बच्चा रिपीट करता रहता है. सो ये कौन से स्टेज में होता है? वेरी गुड, एवरीबडी हैज गिवन अ गुड आंसर, दैट इज इट इज इन टॉडलर्स. ठीक है, रोटिंग ऑफ वर्ड जिसे कहते हैं. चलो नेक्स्ट. इन राइफल क्राइटेरिया आर स्टैंड्स फॉर. सो एक क्राइटेरिया होता है जिसे हम कहते हैं राइफल क्राइटेरिया. राइफल क्राइटेरिया, इसमें आर का क्या मतलब है और किस में होता है ये? इट इज इन किडनी इंजरी. ठीक है, किडनी इंजरी में होता है. इसमें आर का मतलब क्या है? वेरी गुड, यस. तो आर इज फॉर रिस्क. सो राइफल, R is for risk, I is for injury. ठीक है, then we have injury के बाद we have failure, then we have loss and E is for, no बच्चे पूछा, not renal, it is risk. ठीक है, मैंने बता दिया है. ओके, यस. सो ये पूरा क्राइटेरिया है. एंड वी हैव, ये मैं आपको एक फोटो देखती हूँ. इफ आई हैव इट इन माय लैपटॉप, जस्ट लेट मी नो. नहीं, आई थिंक नहीं है. ओके, कोई बात नहीं, आपको इसमें भी मिल जाएगा नेट पे, आप यू कैन गूगल इट. ओके, सो ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज. सो राइफल क्राइटेरिया इज रिस्क, इंजरी, फेलियर, लॉस एंड ESRD, नॉट रीनल, राइट? चलो नेक्स्ट. Communication from the manager of a company in a downward direction. Downward start किससे करना है? मैनेजर से. सो ये है मैनेजर, टॉप लेवल पे. नीचे आ गए, वी आर द सबऑर्डिनेट्स या वर्कर्स कह लो. ठीक है, इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? ये मैंने बना ही दिया, आपको दिखते ही पता चल जाएगा. Yes, we are going to call it as downward communication. Downward, नीचे की तरफ आ रही है ना, ऊपर से नीचे की तरफ. अगर उन्होंने लिखा होता कि सबऑर्डिनेट्स मैनेजर को के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो कौन सी हो जानी थी? अपवर्ड. अपवर्ड, ठीक है. डायगोनल का मतलब है कि मैनेजर है, सबऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्टाफ, आई वुड से कुछ भी लिख दो, एक्स्ट्रा स्टाफ है कोई, एक्स्ट्रा स्टाफ, एक्स्ट्रा स्टाफ. सो अगर मैनेज सबऑर्डिनेट्स या मैनेजर ऐसे इधर को जाते हैं, आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन. वो
हमारे पूरे हिरार्की में नहीं आ रहा है, लेकिन हम किसी हिरार्की के बाहर काम कर रहे हैं, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। और जैसे ये सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बात कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। यस, चलो नेक्स्ट। ओके, वेयर शुड वी प्लेस द थर्मोमीटर पैच? पैच ध्यान से पढ़ना है, थर्मामीटर नहीं प्लेस करना है, थर्मामीटर पैच प्लेस करना है। और इसको हम पैच को कहाँ लगाएंगे ताकि टेम्परेचर मॉनिटर कर सके? चलो, राइट योर आंसर क्विकली। पैच को कहाँ लगाओगे कि आप मेजर कर सको? यस, हु इज गोइंग टू आंसर? पैच कहाँ लगाएंगे और किन में हम करते हैं? ये यूजली हम करते हैं इन्फेंट्स में, ठीक है, इन्फेंट्स में हम पैच लगा देते हैं जो रेडिएंट वार्मर में होते हैं, कि उनमें हम यूज कर सकते हैं। यस, कहाँ पे लगाएंगे जल्दी से बताइए। हम्म, ओके, और कोई? सब अलग अलग क्यों आंसर्स दे रहे हैं? यस, करेक्ट आंसर इज राइट अपर एब्डोमेन, राइट। व्हाई? आई गिव यू द रीजन। वहां पे लिवर होता है, लिवर का काम है मेटाबॉलिज्म का, है कि नहीं? सो टेम्परेचर सेंसिंग जो एग्जैक्ट होती है, दैट इज गुड फ्रॉम लिवर, ठीक है, इसलिए हम राइट अपर एब्डोमेन में रखेंगे। ओके, चलो। देन द सोशल फिनोमिना दैट फोर्सेस द पीपल टू स्टे इन अ ग्रुप। लोग रहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन दे आर फोर्सिंग द पीपल टू स्टे इन ग्रुप। द सोशल फिनोमिना क्या कहेंगे? सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। सोशल फिनोमिना जो कि फोर्स कर रहा है लोगों को ग्रुप में रहने के लिए। तो आई गिव यू एन एग्जांपल, लाइक जॉइंट फैमिली है, the daughter or the son and the daughter-in-law, they want to get separated, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें रोक रही है? एक्सेलेंट मुकेश, वेरी गुड। यस, नॉर्मिंग। नॉर्मिंग मीन्स नॉर्म्स बने हैं, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं। कोई चोरी करने क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं एकदम अमीर हो जाता? कल ही जाके बैंक उठते हैं अभी हम करोड़पति बन जाएंगे? नहीं होता है ऐसे, क्यों नहीं होता है? अच्छी सोसाइटी छोड़ के लोग बुरी सोसाइटी में क्यों नहीं जाते हैं? बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, देयर आर सर्टेन नॉर्म्स टू बी फॉलो, राइट। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, which of the following parameter changes when the patient bites an ET-tube? अब आपने ET-tube डाली थी लेकिन पेशेंट ने उसे बाइट कर लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट ने बाइट कर लिया? कौन सा वाला चेंज हो जाएगा पैरामीटर? यस, जल्दी बताइए। कौन सा पैरामीटर इंक्रीज हो जाएगा? क्विकली राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। Again, Mukesh is the first one to answer. Exactly. It is peak inspiratory pressure. Peak inspiratory pressure. अगर बाइट होगी ना इनकी, तो पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर। कहाँ पे? in the chest, in the chest, and in the ventilator circuit, in the ventilator circuit, ठीक है जी। कब? when the when the lungs are filled with air, when the lungs are filled with एयर, ठीक है जी। ओके, सो इसीलिए क्या होगा? पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर जो है वो चेंजेस आएंगे, क्योंकि जो अंदर लंग्स में हवा भरी है वो, एंड जो वेंटिलेटर सर्किट में है
वो प्रेशर ये डिनोट करता है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Cholestyramine is given in liver cirrhosis for the treatment of, हम क्यों देते हैं ये in case of liver cirrhosis, क्यों देते हैं? Yes, why do we give this? Yes, quickly write your answers in the comment section. मुझे फोन देखना पड़ता है बार बार, I think बहुत slow comments आ रहे हैं मुझे, maybe due to some network issues. Janvi is the first one to answer. So Janvi, right. Very good, Janvi. Right. The correct answer is pruritus. The correct answer is pruritus. So cholestyramine जो है वो pruritus को रोकने में, itching जो हो जाती है ना, उसको रोकने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है जी, ओके। क्योंकि ये प्रोटीनोजन एक सब्सटेंस होता है, उसको बाइंड कर लेता है, इसी की वजह से खुजली हो रही होती है। प्रोटीनोजन को ये क्या करता है? बाइंड कर देता है। ठीक है जी, ओके। चलो नेक्स्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर एकलेजिया कार्डिया, डायग्नोस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है? पहले मुझे बताइए, व्हाट इज एकलेजिया? हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज एकलेजिया कार्डिया? कार्डियक डिजीज है, कोई हार्ट की डिजीज है, कहाँ की डिजीज है ये? How many of you say that it is a cardiac disease? Yes. How many of you say it is a cardiac disease? आंसर तो अभी बाद में देखेंगे, अभी मुझे बताओ कि एकलेजिया कार्डिया है क्या? क्योंकि मेरे काफी स्टूडेंट्स ने दे यूज्ड टू लाइक राइट कि कार्डिया वर्ड, अच्छा कार्डियोलॉजी से होगा, ये हार्ट से रिलेटेड है। इज इट रिलेटेड टू हार्ट? नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट, इट इज रिलेटेड टू द स्टमक। कार्डियक स्फिंक्टर होता है स्टमक में, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है ना, वो ठीक नहीं होती है इसमें, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, सो क्या हो जाता है? यस, सो क्या हो जाता है? इसोफेगस का अपर स्फिंक्टर कार्डियक स्फिंक्टर होता है, लोअर इज पाइलोइड। ठीक है, सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। मेन जो हम इसके लिए यूज करते हैं, इट इज यस, which one is the correct answer? It is esophageal manometry. ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, अनीमा से नहीं होगा। बेरियम स्वेलो, यस इट कैन बी, बट द बेस्ट आंसर इज esophageal manometry। ठीक है, उससे ज्यादा पता चलता है। ओके ओके, ठीक है, चलो। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की क्योंकि बात की है, देन इट इज डेफिनेटली esophageal manometry। ठीक है, चलो। देन the nurse is caring for 4 clients receiving IV infusions of normal saline. ठीक है, which client is at higher risk of bloodstream infection? 4 पेशेंट्स को नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन चल रहा है, किसको रिस्क है सबसे ज्यादा? नाउ इट इज अगेन प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, किसको सबसे ज्यादा रिस्क है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होने का? जल्दी से बताइए, किसको सबसे ज्यादा रिस्क है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होने का? दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। बताइए। ओके, अभी मेरे पास सिर्फ जानवी, मुकेश, सोनिया, दे आर आंसरिंग। किस क्लाइंट को सबसे ज्यादा है? सी, आप अगर हम कुछ चीजें देखें, ठीक है, एक तो है इम्प्लांटेड पोर्ट है, एक पेरिफेरली इंसर्टेड है, एक मिडलाइन आईवी कैथेटर है, बट सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा हमें सेंट्रल लाइन वाले में। सेंट्रल लाइन इज ऑलवेज द प्रायोरिटी
एंड क्योंकि हम सबसे ज्यादा सेंट्रल लाइन में तो आप सीधा बिल्कुल ही एक्सेस जो है ना आपका, वो सीधा जो है ब्लड स्ट्रीम डायरेक्ट हार्ट से हो जाता है ना। तो सेंट्रल लाइन का इंफेक्शन अगर हो गया, उससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इट कैन लीड टू सिवियर सेप्सिस। सो यस, करेक्ट आंसर हियर इज नथिंग बट ऑप्शन ए। ठीक है, सो आपने ये देखना है कि कौन सा जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, सो विद दिस वी हैव ended, we have come to an end of our session. 40 क्वेश्चंस थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, आपने कुछ सीखा होगा इस सेशन से। एंड डू गिव मी फीडबैक, एंड आपको अगर कोई क्वेरीज हैं, अगर क्वेश्चन कोई आपका छूट गया है, कुछ क्वेरीज हैं, दोबारा आप वीडियोस देख सकते हैं। क्वेरी के लिए आप अपने गूगल फॉर्म्स आते हैं, आप क्वेरीज अपने वहां पे डाल सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू आंसर दैट क्वेरी। ठीक है, सो यस, आई रियली एंजॉयड द सेशन विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, एंड रियली यू वर रियली आंसरिंग वेल, सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। सो नाउ नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन मंडे, कमिंग मंडे। उसके टाइमिंग आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें भी ऐसे 40 या 41 क्वेश्चंस अगर मुझे लगेगा हम डिस्कस करेंगे, एंड देन अगले सेशन का मैं उसमें अनाउंस करूंगी, राइट? इफ यू हैव एनी रिक्वेस्ट, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन में अगले सेशन में ज्यादा डिस्कस करूँ, या कौन से सब्जेक्ट आपको लगते हैं कि हम ज्यादा डिस्कस करें, वो भी मुझे अभी बता दीजिए। ठीक है, साइनी स्टैटिस्टिक की क्लास तो सी हमारे 30 डेज के रिवीजन में क्लास तो नहीं हम ले सकते हैं, बट यू कैन सी द स्टैटिस्टिक क्लास, हमारे जो ऐप है उसमें है स्टैट्स की क्लास, आप वो देखिए। ठीक है, प्लान सी में है स्टैट्स की क्लास, नहीं है तो कुछ पोर्शन मैंने नर्सिंग रिसर्च और स्टैट्स का करवाया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में, दैट इज प्रेजेंट ऑन यूट्यूब। आप मेरा नाम लिखिएगा, प्रियंका रणधीर, नर्सिंग रिसर्च एंड नर्सिंग नेक्स्ट लाइव, इनमें से कोई भी कीवर्ड यूज कर लिएगा, मिल जाएगी आपको। ठीक है बच्चे, अब मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की क्लास लेके नहीं आ सकती हूँ, बिकॉज हमारा ये रिवीजन सेशंस है, हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि हम कर लें। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ आपके लिए कि मैं स्टैट्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लेकर आऊँ। ठीक है, ओके, रिसर्च मैनेजमेंट, नर्सिंग एजुकेशन, ये सब्जेक्ट्स माइनर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन, यस आई मेक श्योर कि मैं माइनर, क्योंकि अभी भी मैंने सोशियोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन ये लिए हैं, ताकि आप अगर खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, एटलीस्ट आप इस क्लास में रिवाइज कर सको। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी, एंड आई होप कि अगले सेशंस भी हम ऐसे एंजॉय करें। टाइम से आइए, और क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ कम बच्चे थे, ताकि आपका कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर भी कीजिए, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज भी बढ़ा दो। ठीक है, चलो, सी यू देन ऑन मंडे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।